Regarding methods of human genome sequences, there are two major approaches that we discuss one by one. First of all, one method is approaches to sequence the genome which is expressed to form RNA. Expressed to form RNA. Instead of sequencing the whole genome, only the expression or working genome were sequenced. They were taken out and they were called the expressed sequence tags. Expressed sequence tags, or abbreviation is ESTS. And what are these? They are expressions of genome, human DNA की जो expression जो only RNA को transcribe कर रही हैं. I mean to say it is a part of an exon. Exon का वो वाला part which is expressing to form the messenger RNA. And we all know transcript से whatever is formed and it is going to form the proteins. So one major method was to sequence the genome that are expressed in the form of, that was giving the expression. ठीक है, और expressed in the form of RNAs, and it was called the expressed sequence tags, and then it was sequenced with ease. As we know, there are very less part that is being sequenced in the form of express sequence tags. And the second method was blind approach. Method second, there was a blind approach, or what was done in it? In it, whole of the human genome sequence, whole human genome or human DNA content, we can say, is sequenced. Whole human genome or whole DNA content is sequenced, whether it is expressing or whether it is not expressing. I mean to say, coding plus non-coding sequences, all were non-coding sequences were taken and sequenced. So जब भी इतने बड़े डीएनए को सीक्वेंस करना होगा, then it is a very tedious task. हमें मालूम है कि ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा डीएनए है और उसको सीक्वेंस करें विदाउट एनी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर की एड के बिना. और लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज आर आल्सो देयर. तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो ए, वी कैन से कि बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक थी जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को, कोडिंग सीक्वेंसेस मीन्स एक्सोन्स और प्लस इंट्रोन्स प्लस इंटरजीनिक सीक्वेंसेस, कुछ और भी सीक्वेंसेस तो इंटरजीनिक इनके बीच में जंक डीएनए की फॉर्म में, तो उन सबको सीक्वेंस करना कोई एक आसान काम नहीं था. तो व्हाट वाज डन, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज डीएनए वाज taken and it was fragmented to form the small segments. उनको छोटे छोटे segments में change किया, and then these fragments were magnified or they were amplified, we can say, by using various vectors. और वो vectors कौन से थे वो भी हम देखते हैं. और उसके बाद जब vectors में से वो magnify हो गए, then based on their overlapping sequences, overlapping functions, overlapping genetical bases or nitrogen bases, they were sequenced in a proper manner. तो ये सब किस तरह से था, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं. if we have taken a long DNA content, बहुत long DNA content लिया, तो suppose if we have taken it from a human cell, DNA से लिया किसी भी सेल से, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में से, ह्यूमन में से, ये सेल में से डीएनए कंटेंट व्हेन इट वाज टेकन, देन व्हाट वाज देयर, इट वाज कैरिंग ए हैविंग ए लॉन्ग लेंथ. तो इट वाज फ्रेगमेंटेड, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए गए और रैंडम फ्रेगमेंट्स वर देयर. फ्रेगमेंट्स ऐसे ही randomly they were fragmented. ऐसा नहीं है कि restriction endonucleases were used, they were looking at the specific sites. randomly इनके fragments कर दिए गए और उनको छोटे छोटे segments में change कर दिया गया. जैसे कि हम इसी को ही हम कर लें, तो यहाँ से छोटे फ्रेगमेंट्स किस तरह से बन जाएंगे when they are cut in between.
कहीं से भी randomly if they are cut, then number of thousands of segments are obtained, and if these segments are then taken, then they are what they were next, what was the next step? They were cloned into some suitable vectors, और वो वेक्टर्स कैसे लिए? जो लार्ज साइज डीएनए को, लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को कैरिंग दी लार्ज नंबर ऑफ बेसिस को सीक्वेंस कर सके। तो उसमें से 2 मेन थे। वन वाज यैक, यैक मीन्स यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इट इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए यीस्ट, एक लीनियर सेगमेंट ऑफ यीस्ट, और आर्टिफिशियली क्रोमोसोम ऑब्टेन किया गया यीस्ट का। एंड इट क्या इसका फीचर था? इट वाज एबल टू क्लोन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, नियर अबाउट 100 and 1000 ऑफ बेस पेयर, वी कैन से 1000 ऑफ बेस पेयर के फ्रेगमेंट्स को क्लोन करने के ये काबिल था। और इसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स थे, तो उस फीचर के बारे में तो हमें कुछ अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट एट पर प्रेजेंट वी शुड नो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, दे आर मेड सिंथेटिकली, लैब में इनको बनाया गया, लेबोरेटरीज में बनाया गया। एंड व्हाट वाज देयर फंक्शन? दे वर यूजिंग ऐसे, दे वर बीइंग यूज्ड एज ए वेक्टर। जैसे प्लाज्मिड को वेक्टर की फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, लेकिन प्लाज्मिड की एक लिमिटेशन है, इट कैन क्लोन ओनली अप टू 10 किलो बेस पेयर साइज के जो फ्रेगमेंट्स है ना, उनको ही क्लोन कर सकते हैं। और जो यीस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल बैक, ये भी लीनियर सेगमेंट्स हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, दे आर एबल टू क्लोन अप टू दी 100 किलो बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड्स से 300 किलो बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड को ये क्या कर सकते हैं? दे कैन एम्पलीफाई दैम, इनको क्लोन कर सकते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? मेकिंग नंबर ऑफ कॉपीज फ्रॉम ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि जब इनकी बहुत सारी कॉपीज हमें पता लग जाएंगी, देन वी आर एबल टू स्टडी द वेरियस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। उनके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है ना, उनको इजीली स्टडी करके और उनको इजीली सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हमने क्या लिया? बहुत बड़े फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के, उनको ब्रेक करके, और रैंडम ब्रेकिंग वाज देयर, नो यूज ऑफ एनी एंजाइम, एंड व्हेन दे वर broken they were introduced or cloned into yeast artificial chromosome और bacterial artificial chromosome, उनमें इनको क्लोन किया गया। and when large number of cloning से बहुत बड़े segments जब बन गए ना, प्रोड्यूस हुए, then what was the next step? in the next step they were sequenced based on overlapping function, based on overlapping regions, some overlapping sequences, कुछ नाइट्रोजन बेसिस थे, वो बारी बारी ओवरलैप हो रहे थे, उस ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के बेसिस पे इनको सीक्वेंस किया गया। और इसके अलावा which were the coding sequences and which were non coding sequences, coding sequences जो थे, and what kind of RNA they were forming and what kind of proteins they were forming, I mean to say coding sequences के जो specific functions थे उनको भी लिया गया। ठीक है, उनको भी consider किया गया, and based of their functions, उनके functions के basis पर, उनके functions के साथ उनके जो भी sequence थे जो उनको code कर रहे थे, उन सबको, and considering the ओवरलैपिंग रीजन्स ऑल्सो, उनको ओवरलैपिंग रीजन्स को भी कंसीडर करते हुए एक प्रॉपर सीक्वेंस का नाम दिया गया, एंड दैट वाज कॉल्ड दी सीक्वेंस एनोटेशन। उसको क्या बोला गया? सीक्वेंस एनोटेशन। वो कैसे था एक बार देखते हैं हम फिर से। तो इसमें बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, इसको फिर से हम कंसीडर करते हैं वॉट एवर सेगमेंट्स वी आर ऑब्टेन्ड, जैसे कि ए टी सी जी सी जी। अगेन सेकेंड फ्रेगमेंट में हमने सी जी लिया, ए सी जी टी सी ए। अब इसमें फिर से नेक्स्ट फ्रेगमेंट हमने देखेंगे टी सी ए जी सी यू, सॉरी टी सी ए जी सी ए टी सी जी टी ए टी ए।
तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं ना। नेक्स्ट फ्रेगमेंट हम फिर टी ए से स्टार्ट करेंगे, तो आई मीन टू से ए सी जी, तो ये इनमें से ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हमें कौन कौन से नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर सी जी ए, वी आर लुकिंग एट दिस इज सी जी ए। तो अब इनको ओवरलैपिंग सीक्वेंस को के बेसिस पर हमने इनको सीक्वेंस करना है। दिस इज सी ए, देन again sorry, this is TCA, we have considered this is TCA, next this is TA, then this is TA। ये सब ओवरलैपिंग सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं ना। तो इन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स के सीक्वेंसेस को हमने एक करेक्ट ऑर्डर में डीएनए के सीक्वेंस में रख देना है, जैसे कि ए टी सी जी, अगेन इसको टी सी जी, सी जी ए, सी जी, फिर ये ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस आ गए टी सी ए, फिर देन जी सी टी ए एंड ए सी जी। आई मीन टू से ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस को हमने एक ही बार दे रखा, बारी बारी से नहीं। तो इन ओवरलैपिंग सीक्वेंस से हमने इनको सीक्वेंस किया। अब सपोज दिस आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन एंड दिस इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन ऑफ सम अनदर प्रोटीन एंड दिस इज फ्रॉम अनदर सेगमेंट्स दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन। और आई मीन टू से अगर हम कह लें बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी आते हैं, तो उन नॉन कोडिंग के ओनली व्हाट वी हैव टू कंसर्न कोडिंग सीक्वेंसेस के फंक्शंस को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर उनको एनोटेशन का नाम देंगे, अब यानी कि उनको सीक्वेंस करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। तो सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है? सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स based on their coding sequences, based on their coding sequences। coding sequences कौन से हैं उनके? along with their functions, और उनके क्या functions हैं, कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, along with their functions by and also considering the overlapping regions also, overlapping रीजन्स सीक्वेंसेस। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देयर वाज ए प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डीएनए वाज पॉसिबल। क्लियर? तो दिस सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन द टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड बाय फ्रीडरिक सेंगर। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड इन फॉर्मिंग द प्रोटीन्स। सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड्स को भी फ्रेडरिक सीक्वेंस ने ही सीक्वेंस किया था और उसी टेक्निक को अप्लाई किया डीएनए की सीक्वेंसेस के ऊपर, ठीक है। एंड दिस ही इज ए फेमस साइंटिस्ट एंड ही इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंसेस विद प्रोटीन्स। ये सब क्या कहते हैं, फ्रेडरिक ने ही यूज किए थे और ऑल देवर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड सीक्वेंस। मैनुअली तो पॉसिबल था ही नहीं, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स वर यूज्ड। एंड सेकेंड, फिर इनके जो वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल सीक्वेंसेस एंड ऑल द डाटा वॉज स्टोर्ड और ऑल द डाटा वॉज taken from the computer, automated या high speed high speed computational devices were used, high speed computers were also used for this sequencing, ठीक है। and all this they result to form the whole of the set of the human genome। clear? तो sequence annotation is an important part that we have to understand क्या होता है, and just we have to assume then because we are not looking all these procedures। तो whatever I have told you आपने उसको assume करना है कि, और इनके लिए बहुत बड़े सीक्वेंसेस होते हैं या मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें इनको सीक्वेंस किया जाता है, और वो स्पेशल टेक्निक्स जो होती है ना दैट ऑल दी साइंटिस्ट दे नो, इन सबको मालूम होता है। तो हमने तो व्हाट वी हैव टू डू कंसीडर व्हाट एवर इज देयर इन एनसीईआरटी, वी हैव टू स्टिक टू दैट लेवल कि जितना भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट, जो मैंने आपको बताई है कि क्या होता है सीक्वेंस एनोटेशन, प्रॉपर फंक्शन
कोडिंग रीजन के साथ, और फिर उनके ओवरलैपिंग रीजन्स को देखते हुए, और फिर ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे उनको क्या करना है, व्हाट वी कैन से कि उनको सीक्वेंस करना है, ठीक है। उसके लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स यूज़ किए गए हैं, कंप्यूटर्स यूज़ किए गए हैं जो सीक्वेंसिंग बहुत फास्ट करते हैं। तो ये सब टेक्निक किसके ऊपर बेस्ड है, फ्रेडरिक सिंगर के ऊपर बेस्ड ने डेवलप की थी, जिसने प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स हैं, किन व्हाट मैनर दीज अमीनो एसिड्स आर बीइंग सीक्वेंस्ड, उन सब की भी सीक्वेंसेस को फ्रेडरिक सिंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग द मेथडोलॉजी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बाय दीज एफर्ट्स व्हाट वी कैन से इन 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1 was sequenced, जो कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम माना जाता है और सबसे लास्ट में था, एंड लास्ट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम, आई मीन टू से 13 ईयर्स के बाद भी 3 ईयर्स एक्सटेंड हो गए थे। 2000 में 1990 में स्टार्ट हुआ और 2013 में इट वाज अबाउट टू कंप्लीट, लेकिन सम ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स वर लेफ्ट, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 वाज लेफ्ट, एंड देन 22 वी कैन से होल ऑफ द 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई। एक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मेल में और फीमेल में भी, और वाई इन मेल्स, इन व्हाट मैनर दे आर सीक्वेंस्ड, इन सबको सीक्वेंस किया जा चुका है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2006 सक्सेसफुली सीक्वेंस हो चुके हैं, ठीक है। नाउ व्हाट कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट वी सी, फर्स्ट आई रब एंड देन आई टेल यू।